Good Good, morning. Good morning, everyone. Welcome Good to today's morning. good session. morning. Good morning. Good morning. We are so happy to start Good morning, assignments everyone. today, and I really hope and I really wish, and this should be the intention for all of us that हम बहुत diligently एक रोज की practice करें रोज ही. I hope सबने कल अपनी वो desire list, dream list लिख ली होगी जो कल प्रिया ने बहुत अच्छे से explain करी थी. And thank you all for being in the session. Today, I and Priya will be conducting the session. Deepti ma'am will be there, but because she's traveling, she will give her inputs. And over to you, Priya. Yeah, good morning, everyone. Priya here. So we'll be starting with our first book today. I'll be taking the first part, and Poonam ma'am will be taking the creative visualization. So Deepti ma'am definitely will be there for with us to share her inputs. So yeah, coming back to the chapter, I'll bring the book now. So we might all have we have listed our dreams yesterday, right? So today what we'll be doing is, today we'll be laying the foundation to our life, the beautiful foundation to our life. Okay. So yeah, the book is visible, right, ma'am? Is it? Yes, Priya, absolutely. Okay. Okay. So yeah. So yeah, today's chapter is the Count My Blessings chapter. That is, we'll be counting the blessings that we have already in our life. So there are many actually. Counting the blessings में आप count करने जाओगे ना, there are countless actually. जो जीसस बताते हैं बुक में, जिन 2 चैप्टर्स में पहले उन्होंने बताया है कि there are so many things to be blessed about, to be grateful about, for being grateful for. So we'll be listing all those things today and the coming forward. All the days we'll be doing this practice. This practice will be there for us forever now. हमेशा के लिए ये प्रैक्टिस हमें करनी है. ये प्रैक्टिस जो है हमारी जो फाउंडेशन है ना, उसको बिल्ड करती है. हमारे दिन की शुरुआत अगर हम ब्लेसिंग से करते हैं तो दिन के बाकी जो हमारे आने वाले जो बाकी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन होते हैं, उनसे हम लोगों को निजात मिल जाती है. उन वो चीजें हमारे लाइफ में धीरे धीरे करके आनी बहुत कम हो जाती हैं. और अगर आती भी हैं तो we get that energy, we are in that energy to fight those things and to come back, to pull ourselves back. So this particular chapter is the most important chapter here. That is why it has come in the beginning, you know. So Anu will be reading today. Yes, Anu. Hi, good morning all. Good Day morning, one. Anu. Day 1, count your blessings. I quote, when I started... Just a moment, Anu. Yes. Anu, let me explain the picture first. So here in the picture, we can see the writing desk, and writing desk के सामने एक विंडो खुला हुआ है. उस विंडो में से हमारी बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है. इसका मतलब ये है कि this is the morning light, the morning sunlight that is coming into our book. The book which is kept on the table is the journal on which we'll be writing our blessings now on. हम लोग एक छोटा सा बुक ले लेंगे, चाहे वो स्पाइरल बाइंडिंग वाला बुक हो, चाहे वो आपका छोटी सी डायरी हो, चाहे बड़ी सी हो. Keep it handy with you always, because this book will be needed by us for each and every day now. हर रोज सुबह उठकर ही हमें ये बुक चाहिए. एज एंड व्हेन आप उठते हो तभी हम लोगों ने ये लिखना शुरू करना है कि हमारे पास क्या क्या है. आंखें खोलते ही सबसे पहले हम लोगों को थैंक यू करना है. थैंक यू के बाद हमने अपना जर्नल लिखना शुरू करना है. एंड आप देखोगे हमारे जो कंक्लूडिंग डेज में ना हम लोग कोई करते नहीं है प्रैक्टिस, मतलब एज सच रोंडा 128 डेज के बाद कोई प्रैक्टिस होती नहीं है. लेकिन आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, so this practice is going to stay with us till our whole life, till the time we are taking our last breath. If this is the way we are living our life, then our life is going to be blissfully happy, है ना? So yeah, so this is the thing. हम लोग सुबह से ही, the first thing in the morning we'll be doing this, we'll be writing our blessings. So yes, Anu, now start. Yeah. Day 1, count your blessings. When I started, I quote, when I started counting my blessings, my whole life turned around. By Willie Nelson,
singer-songwriter. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that continuing your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out our blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Yeah, just a moment, Anu. I'll explain a bit more. So yeah, Rhonda Byrne has clearly said here, last chapter में भी उन्होंने ये बताया कि gratitude is the ladder to your success. Whatever you have right now, be it small thing, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज हो, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास आज एक छोटा सा घर है, आप घर भी नहीं है, मान लीजिए आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो. इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर रेंटेड अपार्टमेंट, देन वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास एक बड़ा सा घर भी होगा. आपके पास बड़ा घर नहीं है तो क्या हुआ, उस छोटे से घर के लिए हम लोगों को ग्रेटफुल होना है, राइट? हमारे पास मान लीजिए आज बहुत अच्छी जॉब नहीं है, हो सकता है हमारी सैलरी अगर है तो हमारी सैलरी उतनी अच्छी नहीं है या हमारे कॉलीग्स अच्छे नहीं है, तो हमें क्या करना है ना, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारी प्रेजेंट जॉब है या जो हमारी एजुकेशन के कारण हमें वो जॉब मिली है, हमने उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करना है. और ये सब फील करना जो है सुबह सुबह इसलिए जरूरी है कि मॉर्निंग बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ अ डे. If your morning is beautiful, your day is going to be beautiful. If your day is going to be beautiful, then your week will be beautiful. And इस तरह से आपका मंथ, आपका पूरा का पूरा साल, पूरी लाइफ अच्छी जाएगी. इसीलिए सुबह सुबह करना जरूरी है. दैट टू क्योंकि उस टाइम जो है ना, हमारा ब्रेन इतना ज्यादा एक्यूमुलेटेड, इतना ज्यादा क्योस नहीं होता ब्रेन में. हम लोग सुबह सुबह सोकर उठते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं रात की नींद के बाद. So counting our blessings at that particular time is मतलब इज अ ब्लिसफुल थिंग. आप देखना कई बार ना हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम लोग किस चीज के लिए ब्लेस करें. हम लोग कई बार ऐसे क्योस में रहते हैं, हमें समझ नहीं आता. बट सबसे पहली बात तो ब्लेसिंग के लिए यही है हमारे लाइफ में कि वी हैव ओपनड आवर लाइफ टू द ब्यूटीफुल न्यू वर्ल्ड नाउ. द होल वर्ल्ड इज न्यू टुडे. कल का जो था वो आज उससे जुड़ के हुआ है ना. आज हमारी आंखें खुली हैं, हम लोग उठे हैं. वी हैव टू हैव दैट स्माइल ऑन आवर फेस, क्योंकि बहुत सारे लोग आज उठ ही नहीं पाए होंगे, राइट? द फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंडली, आप अपने आजू बाजू में देखो कि या मेरी फैमिली है, मेरे मेरे साथ मेरे अगर पार्टनर है तो वो है, शी इज स्टिल देयर. वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हम अपने विशेष के हिसाब से अपने काम कर सकते हैं. हम ऐसी जगह में रहते हैं. अब मान लीजिए कोई छोटा शहर हो,
आपको रास्ते में ना बहुत सारे गड्ढे भी नजर आते हो कि जब हम ड्राइव करते हैं, इतने पॉट होल्स हैं, ये है वो है। लेकिन आज वो पॉट होल्स जो हैं, आप उस टाइम को इमेजिन करो जबकि ये रोड्स ही नहीं होते थे, राइट? ये रोड्स नहीं होते थे, मिट्टी की खाली वो कच्चे रास्ते होते थे। अब कच्चे रास्तों में आप चल के देखिए, जब आप गांव वगैरह में कहीं जाना पड़ता है तो कच्चे रास्तों में चलना कितना मुश्किल होता है। बट आज हमारे पास स्टिल ये रोड्स तो हैं। आपको पता है, मैं ना NH1 के पास रहती हूँ, तो NH1 सबसे पुराना हाईवे है। तो वो वाला पहले के इतना ज्यादा मस्त टाकोल और इससे से बना ही नहीं हुआ था। ऐसा था कि बिल्कुल मतलब था ही नहीं, आप ये बता लो, कच्चा रास्ता था। आज ये इतने ब्यूटीफुल फ्लाईओवर्स हैं, इतनी सब अच्छी सड़कें हैं, डिवाइडर है हमारी सेफ्टी के लिए। तो हम लोगों को उन सब चीजों पे नजर रखना पड़ेगा। अगर एक आध रास्ता, अगर 4-5 रास्ते रोड्स हमारे शहर में खराब भी है तो कोई बात नहीं, बाकी और रास्ते तो अच्छे हैं ना। हम एक अच्छी शांति वाले एक पीसफुल शहर में तो रह रहे हैं। मान लीजिए गांव में रह रहे हैं, तो उस गांव में भी काफी सारी फैसिलिटीज हैं। आप मतलब यूल बी लाइक, आप इमेजिन करो कि उस टाइम हम लोग कितनी ज्यादा लग्जूरियस लाइफ आज जी रहे हैं। एक स्विच दबाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, एक स्विच दबाते हो तो पंखा ऑन हो जाता है। एक घर के अंदर हम लोग रह रहे हैं जो हमें सेफ रखता है। लेकिन आपको पता है, आज के जमाने में हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, वो राजा महाराजा भी एंजॉय नहीं कर पाते थे उस टाइम पे। तो इसलिए वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। हम लोग, आप जहां पर भी जाएंगे, जिस भी रूम में आप जाएंगे, आप उस रूम के चारों तरफ अगर आप घूम के देखोगे ना, देयर आर जिलियंस ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर एक्चुअली। कई बार हमें ना क्वेश्चंस आते हैं कि किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, तो उस चीज को हम लोगों के डिग इन, वी हैव टू डिग इन डाइव, लाइक वी हैव टू डाइव इनटू आवर माइंड एंड से, इवन डाइविंग इज नॉट नेसेसरी। आप इधर उधर देखोगे ना, तभी आपको नजर आ जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स वी आर अलाइव फॉर। आप ये देखिए, द एयर इज देयर, हवा है हमारे लिए सांस लेने के लिए। हवा इज अवेलेबल फॉर एवरी वन, राइट? चाहे वो कोई बिलियनर हो, चाहे मैं झोपड़ी में रहती हूँ, राइट? हर किसी के लिए इंडिपेंडेंटली, डेमोक्रेटिकली वो पूरी की पूरी हवा अवेलेबल है। हम उस हवा में सांस ले रहे हैं, राइट? लेकिन हमारे मन में ये रहते हैं कि कितनी पॉल्यूटेड हवा है, आज ये है हवा में, ये है वो है। नहीं, हवा है हमारे लिए, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उठते ही हम लोग अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं, उतरते ही हम लोग अपने फुटवेयर्स को पहनते हैं, और हम लोग उठ के खड़े क्यों हो पा रहे हैं? दैट इज बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल इज देयर ना। ग्रेविटेशनल पुल के कारण हम खड़े हो पा रहे हैं, हम लोग चल पा रहे हैं फ्रिक्शन के कारण। सो आप जब मेटिकुलसली सोचोगे ना, तो आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी कि कई बार ना कॉपियां भरनी, अगर आप शुरू से लिखो ना सीरियसली, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कब हो गया, जब मन से लिखोगे आप, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉट डाउन दोज थिंग्स। हम लोगों को अपने दिमाग में, अपने लाइफ में इन चीजों को उतारना है, सो दैट हम ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहे, हम ग्रेटफुलनेस की फ्रीक्वेंसी में रहे। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो हमारी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, और अगर हमारी लाइफ ब्लिसफुल है तो औरों को भी ब्लिसफुल कर सकते हैं। हमारी एनर्जी अगर ज्यादा है तो हम वही एनर्जी औरों को ट्रांसमिट करते हैं, राइट? मुझ में अगर खराब एनर्जी है तो मैं खराब ही एनर्जी दूंगी, और मुझ में अगर अच्छी एनर्जी है तो ऑब्वियसली दैट विल बी एमिटेड। आपको कई बार बहुतों को देखकर लगता होगा ना कि उसका ऑरा कितना अच्छा है, वो मतलब वो आते ही पूरा का पूरा घर रेडिएट हो जाता है। सुबह सुबह उठ के हम दीप्ति मैम को देख के कितना खुश हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दोज आर द पीपल हु लिव इन ग्रैटिट्यूड। सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पीपल जो है ना इस अर्थ का, वो बुद्धिस्ट मंक हैं, जो वहाँ जिनके ब्रेन में जब उनके ईईजी वगैरह किया गया, उनके ऊपर रिसर्चेस भी चल रही हैं, वो उन्होंने बताया अपने हैप्पीनेस का कारण ये कि आई रिमेन ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड। यही सिखाता है हम लोगों को, ग्रेटिट्यूड का जो ये पार्ट है ना, ये रॉन्डा बर्न में यही सिखाती है। तो आज रॉन्डा बर्न कहती हैं कि जैसे ये विली नेल्सन का जो कोट है, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। यानी कि जब वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट वी हैव राइट नाउ, what the this is blissful to be here on this planet। कितने सारे planets हैं, मतलब सबसे बड़ी आप बात देखिए ना, you are the chosen one। इतने सारे sperms के बीच में से खाली हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, राइट? मिलियंस वर देयर, उसमें से हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, यूनिवर्स ने हमें सिलेक्ट करके यहाँ भेजा है। Isn't it the biggest reason to be happy for? Isn't it the biggest reason to be grateful for?
सो यस, हम लोग ऐसी जगह पे हैं, हमारा प्लैनेट सबसे खूबसूरत प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम का। हम लोगों को बियॉन्ड द सोलर सिस्टम जितना हम लोगों को पता है, उनमें से किसी में भी लाइफ नहीं है। सो वी आर सो लकी टू बी हियर। हम कितने लकी हैं कि हमारे चारों तरफ ये पेड़ पौधे सारी चीजें हैं जो कि इतने मिलियंस ऑफ इयर्स से हैं। हम लोग जाते हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्या हमें पता है वो पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? वो पेट्रोल आ रहा है जो मिलियंस ऑफ इयर्स से, जो जो कोल है या फिर जो डेड एनिमल्स हमारे से पहले, जो इवन डायनासोर्स को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो डेड बॉडीज है, उनके जो रिमेन्स है ना, उनके कारण ही तो फॉसिल फ्यूल हुआ है ना। उनके कारण ही आज हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीजें यूज कर पाते हैं। कितनी सारी चीजें हैं हम लोगों को शुरुआत से ही थैंक यू करने के लिए। हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोगों को उन साइनोबैक्टीरियम जो कि ओशन बेड में इतने सारे जो वाटर एनिमल्स हैं, जो वाटर प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स को सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उन प्लांट्स के कारण वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एमिट करते हैं पूरे के पूरे अर्थ में। उसके बाद ट्रीज करते हैं। तो हम लोग सांस ले पा रहे हैं ना, वही सबसे बड़ी नियामत है हमारे लिए, राइट? तो हम लोगों ने, इसीलिए रोंडा बर्न कहती हैं कि जब हम लोग वो काउंट करना शुरू करेंगे ना, तो हमारी जो लाइफ है, विलियम एंसल में कहते हैं इस बात को, कि हमारी जो लाइफ है ना, दैट विल टर्न अराउंड। जैसे उनकी हुई है वैसे हमारी भी होगी। फॉर ऑल दोज हु आर देयर विद अस, हम लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें खुद को पता है कि कितनी ब्यूटीफुली हमारी लाइफ टर्न अराउंड हो रही है ना? बिल्कुल हमारी लाइफ, कहते हैं ना, 180 डिग्री चेंज हो गई है। एंड थ्रू 360 डिग्री चेंज करने के लिए तो हम लोगों को प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एंड दिस इज द लेआउट, लाइक दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द प्रैक्टिसेस। ये हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए। 28 डेज भी होंगे जब हमारी प्रैक्टिसेस रौंडा वन असाइनमेंट्स देने के लिए, असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे हमें, लेकिन वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। वो ये बोलती है कि ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, दिस इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर। सो हमें हमेशा करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आज हमारे पास क्या है, क्या नहीं है। हमने ग्रैटिट्यूड करना है, हमने थैंकफुल होना है, सो दैट जो आज नहीं भी है ना हमारे पास, जो चीज हमारे पास कम भी है ना, वो चीज हमारे लाइफ में मैग्नीफाई हो जाए, वो चीज हमारे लाइफ में और ज्यादा अच्छे से आ जाए। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत खटास है, या मान लीजिए कोई रिलेशन अगर टूट भी गया है, तो भी वी हैव गॉट दैट पावर इन आवरसेल्व्स। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में वो पावर हमें एनर्जी के लिए जो मिलती है ना, वो होती है, लेकिन असली पावर जो है वो तो हमारे अंदर ही है ना। सो वी हैव टू डाइव इनटू आवर माइंड एंड वी हैव टू डिग इनटू आवर लाइफ कि हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए। हम लोगों को ये नेगेटिव फीलिंग्स जो दिन के दौरान आती जाती है ना, आती हैं, कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी, हो सकता है हम लोग अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाएं, हो सकता है टिफिन में कुछ ऐसी चीज बने, आज आपसे कुछ ऐसी चीज बने जो कि टेस्टी ना हो, लेकिन कम से कम है तो सही ना आपके पास खाने के लिए। आपके पास एक फ्री फ्लो ऑफ वाटर तो है ना पीने के लिए, दैट इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दैट यू हैव। तो हम लोगों को जो है ना हमारे पास, उनके लिए थैंकफुल होंगे, तो जिस चीज की आपको अपनी लाइफ में कमी लगती है ना, वो चीज भी आपके पास आ जाएगी, मैजिकली आ जाएगी। अब मैजिकली का मतलब ये है कि ब्लिसफुली, हम जब ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमारी लाइफ ऐसे ब्लिसफुल हो जाती है कि आपको किसी चीज से कोई शिकायतें नहीं रहती। शिकायतें करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता एक्चुअली। अगर कोई नेगेटिव चीज भी हो, हम उसमें से भी पॉजिटिव निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर ट्रैफिक है तो क्या हुआ, ट्रैफिक अगर है तो हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास लोग तो हैं, हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो लोग तो हैं आज सड़कों में चलने के लिए। अगर कोई कोई भी बंदा नहीं हुआ तो हम किसको, अगर हम लोग आज बिजनेसमैन हैं, तो हम किसको अपना सामान बेचेंगे अगर लोग ही ना हो तो, राइट? अगर हम आज टीचर हैं, बहुत कम पीपल अगर हो, तो हम किसको पाठ पढ़ाएंगे, किसको सिखाएंगे, राइट? तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे हर एक क्रिटिसिज्म जो हम लोग करते हैं ना, उसके आगे हम लोगों ने एक और लाइन जोड़ देनी है कि इफ नॉट, अगर ये चीज ना हो तो हमारी लाइफ क्या होगी। जस्ट थिंक ओवर दैट। आप जब उस चीज को सोचोगे ना कि इस चीज के बिना मेरी लाइफ क्या होगी, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों ग्रैटिट्यूड करना चाहिए इसके लिए, राइट? ये है। जैसे हम लोग गवर्नमेंट के बारे में भी बहुत सारे हमारे मन में कंप्लेन्स होती हैं। अब मनी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, अपने हमारे पास हो सकता है इतने अच्छे डिजाइनर क्लोथ्स ना हो,
उसके लिए अब अपने पास जो भी है ना, उन क्लोथ्स के लिए, कहते हैं ना, उनके लिए आप थैंकफुल होगे तो कल को आपके पास डिजाइनर क्लोथ्स भी होंगे। वो दिन दूर नहीं है। जब आप जो है उसमें ग्रेटफुल होगे, उसमें संतुष्ट होगे, उस और उसके लिए काम करोगे, अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बनाने के लिए, क्या पता है कि आपको एनर्जी मिल जाती है फिर सारा दिन काम करने के लिए। आपने पहले लिख दिया ना कि हाँ भाई ये चीजें हैं मेरी लाइफ में, जो ये तो मेरे पास मेरे अकाउंट में ऑलरेडी जमा है ना ये चीज, अब मुझे अपने अकाउंट में ऐड करना है, वो तो ब्लिसफुल ही हो जाएगा। हम अगर शांत मन से करेंगे, हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी जब अगर हाई होगी, तब अपने आप अच्छी चीजों के अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे, है ना। सो यस, अनु, पढ़ो। Yeah. I quote, better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Unquote. Maltby D. Babcock, writer and clergyman. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you're going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have dash what because dash why. I am so happy and grateful for dash what because dash why. I am truly grateful for dash what because dash why. With all my heart, thank you for dash what because dash why. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day.
there is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. You could be grateful for your senses, your eyes that you see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want, depending on what is important to you at any time. Magic, gratitude, subjects. Number 1, health and body. Number 2, work and success. Number 3, money. Number 4, relationships. Number 5, passions. Number 6, happiness. Number 7, love. Number 8, life. Number 9, nature, planet Earth, air, water, and the sun. Number 10, material goods and services. Number 11, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you feel, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and the other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. Magic reminder, make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Magic practice number 1, count your blessings. Number 1, first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Number 2, write why you are grateful for each blessing. Number 3, go back and reread your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number 4, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Number 5, read tomorrow's magical practice today. Thank you, Anu, for reading Thank you, so ma'am. beautifully. Thank you so much. So yeah, Rhonda Byrne says कि हम लोग जो gratitude लिखते हैं, उसके बाद असली gratitude feel करने के लिए we have to write the reason why you are grateful. आप लोगों ने जब वो पहला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें रॉन्डा बर्न ने एक्नॉलेजमेंट में देखना किस तरह से उन्होंने हर एक इंसान को जिसके लिए वो थैंकफुल हैं, हर एक इंसान को रीजन बताया था कि फोटोग्राफर के लिए थैंक यू, फोटोग्राफर का नाम लिखे, आई एम सॉरी मुझे उनके नाम इतने अच्छे से याद नहीं है, बट उन्होंने हर एक इंसान को नाम लेकर उनके काम के कारण थैंक यू किया था.
कि फोटोग्राफर को इस चीज के लिए थैंक यू, हेली उनकी डॉटर को इस चीज के लिए थैंक यू, उनकी सिस्टर को इस चीज के लिए थैंक यू। द सेम वे हमने भी यही करना है, हम भी यही करेंगे कि जितनी भी चीजें हमारे लाइफ में है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, एटलीस्ट 10 उनमें से 10 चीजों के लिए हम लोगों ने उनके रीजंस लिखने हैं कि वाई वी आर ग्रेटफुल। बिकॉज रीजंस बताने से इट ब्रिंग्स मोर फीलिंग, वो फीलिंग आती है। और इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, फीलिंग के कारण ही, फीलिंग्स हमारे दिमाग का फ्यूल होती है। दिमाग को जो खाना जाता है वो फीलिंग्स का खाना जाता है। हम खाना जब खाते हैं वी फील सेटिएटेड कि हाँ हमारा पेट भर गया, तो दैट्स अ फीलिंग, राइट। हमें जब कोई आई लव यू बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो दैट्स अ फीलिंग अगेन। कोई हमें, हम किसी बात के लिए हमें बुरा लगता है तो हम रोते हैं, तो दैट्स अ फीलिंग अगेन। सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, राइट। सो हम लोग जो ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, हमें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें रीजन बताना कि वाई यू आर ग्रेटफुल। जैसे कि अगर हम लोग मदर अर्थ के लिए लिखते हैं, थैंक यू मदर अर्थ फॉर द ग्रेविटेशनल पुल दैट यू प्रोवाइड बिकॉज ऑफ विच वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, राइट। हमने उसका रीजन बताया। Thank you, Mother Earth, for the beautiful crop that is grown on the land, because of which we can feed us, we can feed the people around us. So इस तरह से हमने हर चीज के लिए उसका रीजन बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोंडा बर्न तो मतलब इतनी, शी इज सच अ डार्लिंग, कि उन्होंने तो सारी चीजें भी बता दी हैं हमें। हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है कि किस किस चीज के लिए हमें थैंक यू कहना है। उन्होंने कह दिया है कि आप जो है थैंक यू बोलो इतनी सारी जो चीजें हैं। हेल्थ, हमारा सबसे पहले हमारी हेल्थ है, आप हेल्थ के लिए थैंकफुल हो। हमारे पास जो नेचुरल चीजें हैं, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अर्थ है, वाटर है, सन है, इन सब चीजों के लिए हम लोग थैंकफुल हुए। हमारी जो अच्छे अच्छे पीपल हमारे अराउंड है, हमारी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स है, उनके लिए हम लोग थैंकफुल होंगे। और हमारे घर की जो ऐसी चीजें हैं, हम अब घर में रह पा रहे हैं, घर हमारी टाइल्स से बनी हुई है, उन मजदूरों ने जो वो टाइल्स बनाई है, उसमें जो सीमेंट लगा हुआ है, मतलब मेटिक्यूलसली आप जब सोचेंगे ना कि उस सीमेंट के लिए भी थैंक यू। वो सीमेंट कहाँ से आया है? वो सीमेंट वहां से आया है ना, वो माउंटेन्स और वो हिल्स को टूट टूट के, वो पत्थरों को तोड़ तोड़ के जो सीमेंट आया है हमारे घर में, तो इट कम्स फ्रॉम देयर। वो पानी कितना सारा हमारे बिल्डिंग को बनाने में भी लगा है। तो बहुत ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से नहीं भी सोचेंगे तो आसपास देखेंगे, हम लोगों को उसके रीजन के साथ हमने थैंक यू लिखना है उस पर्टिकुलर चीज को, जिस भी चीज के लिए, जिस भी ब्लेसिंग के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। सो उन्होंने ये सिंटैक्स बताया है कि हमने ये वाला पर्टिकुलरली, ये करने से क्या हुआ, आसानी होगी। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन चूंकि हम उनको अपना मेंटोर मान रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे वो बोलेंगे हम लोगों ने वैसे लिखने की कोशिश करनी है कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज वाई, just the way कि I'm truly blessed to have clothes in my wardrobe, because of which I get protected in the winters, in the summers, in the rain. It protects my privacy also. So like that we can write, I'm so grateful to have beautiful eyes with which I can see this beautiful world. So this is very important to write the reason also. और आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, मतलब इन एडवांस ही हम लोग उसको थैंक यू करके उसको हम लोग पक्का कर लेते हैं कि या आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ये हमने लिखा। हमारे लिए उन्होंने, रौंडाबन ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि हम किस किस चीजों को थैंक यू बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट। उसके बाद हमने क्या करना है ना, कि रौंडाबन बोलते हैं कि जैसे हमारे लाइफ में हम लोगों को मोर फीलिंग लाने के लिए, हम में से ज्यादातर लोग होंगे कि हम लोग किसी डीटी को, किसी भगवान पे विश्वास रखते होंगे। कुछ हम लोग ऐसे भी होंगे कि जो कि हमारे यूनिवर्सल पावर्स पे, मतलब नेचर पे, नेचर की एबिलिटीज पे हम लोग यकीन रखते होंगे। तो हम लोग उनके थ्रू अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग यूनिवर्स को बोलते हैं। अब मैं भी हमेशा ऐसे लिखती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड यूनिवर्स फॉर दिस, इस तरह से लिखती हूँ विथ ऑल माई हार्ट। I am blessed to have this particular thing in my life because of that, राइट। तो इस तरह से हम लोग उन्हें यूनिवर्स को लिख सकते हैं। अगर हम लोग दुर्गा माता को मानते हैं तो दुर्गा माता के लिए थैंक यू दुर्गा माता फॉर दिस, इस तरह से लिख सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स को, अगर उस पोजीशन में, हम लोग ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स ही पूजनीय होते हैं, उनको भी उनके थ्रू भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं अपने ग्रैटिट्यूड को। इस तरह से हमने ग्रैटिट्यूड को डायरेक्ट करके अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है। सन को, जैसे हम लोग सूर्य को सुबह सुबह पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो भी तो ग्रैटिट्यूड ही है ना।
So in that sense, we can always direct our blessings to the sun के through हमारे पास वो blessing. I'm so thankful to God's son for this, right? To the heat and light that you provide us, for the vitamin D3 that I get from your sunlight, for everything, like whatever we can see ना, जो भी कुछ आज हम लोग देख पा रहे हैं, it is only because of sun's energy. जो भी लाइट हमारे पास आ रही है, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों में बन रही है, राइट? तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सन्स लाइट दैट वी कैन सी द थिंग्स. तो सन तो बहुत ही पावरफुल चीज है, मतलब द मोस्ट पावरफुल चीज है मुझे लगता है हमारे पूरे इस यूनिवर्स में, एटलीस्ट हमारे गैलेक्सी में. तो या तो इस तरह से हम लोगों ने हर किसी चीज को, किसी भी हम लोग जिसको भी मानते हैं उनके थ्रू हमने ये ब्लेसिंग्स को डायरेक्ट करवाना. इस तरह से हम लोग अपने ग्रैटिट्यूड को फील करेंगे, राइट? तो इस तरह से हमने करना है. एंड रॉन्डा बहन जैसे बता रही हैं कि ये जो प्रैक्टिस है हमारी नेक्स्ट 27 डेज तक चलती रहेंगी. आज हम लोग 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कल भी लिखेंगे, परसों भी लिखेंगे. इस तरह से हम लोग हर रोज 28 डेज तक ही नहीं, हम लोग तो पूरे लाइफ लॉन्ग लिखेंगे. ये हम लोग वो करते ही हैं. मुझे ये क्लासेस करते हुए 1.25 साल हो गया है. तो ईच एंड एवरी डे मैं लिखती हूँ ये. एंड बहुत ही ब्लिसफुल मेरी लाइफ तब से हो गई है. कोई और प्रैक्टिस नहीं हो तो ये भी अगर हम लोग करते हैं ना, हम लोगों को जैसे असाइनमेंट्स मिलते हैं वो हम करते जाते हैं, लेकिन इनिशियली ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और करने का तरीका रॉन्डा बहन ने, लिखने का तरीका तो हमें बता दिया कि कैसे लिखना है, कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड करके लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल करके लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स करके. तो उन्होंने, हम लोग, आपका अगर मन करता है ना थैंक यू ट्रिपल बार थैंक यू करके लिखने का, वो भी लिख सकते हैं जैसे रॉन्डा बहन कह रही है. वैसे भी हम लोग किसी भी तरह से अपने उसी सिंटैक्स को फॉलो करके लिखेंगे और रीजन देंगे. उसके बाद एक बार हमने 10 की लिस्ट बना ली. सबसे पहले हमने हेडिंग डाला काउंट माई ब्लेसिंग्स, बिकॉज वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स. नंबर 1 लिखा, फिर 10 तक लिखा. उस 10 को लिखने के बाद ना, ये मैं दीप्ति मैम ने हमें बताया था कि मैं क्या करती हूँ, वो 10 लिखने के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू से उसको बॉक्स कर लेती हूँ. हो गया वो 10. तो उसके लिखने के बाद हम फर्स्ट ब्लेसिंग में दोबारा जाएंगे, उसको रीड करेंगे. ठीक है, आउट लाउड उसको रीड करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी जो साउंड है ना, साउंड इज ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल एनर्जी. वो वेव्स होती हैं, बहुत जल्दी वो वाइब्रेट करती हैं यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ. सो अगर हम लोग आउट लाउड बोल पाए बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक दैट. नहीं बोल पा रहे हैं, अगर कोई सो रहा है साथ में, तो हम लोग विस्पर कर सकते हैं. ठीक है, और हम लोगों ने 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ताकि जो हमारे ब्रेन ने, हमारे हाथों ने जो लिखा है ना, वो हमारे ब्रेन में वो अपलोड हो जाए अच्छे से, और इसी तरह से यूनिवर्स में वो चले जाए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल दोज ब्लेसिंग्स. रीड करने के बाद हर 10 को हम लोग रीड करेंगे. उसके बाद हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एक पढ़ा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सेकंड पढ़ा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह 10 के लिए लिखेंगे और थैंक यू बोलेंगे. तो आज की हमारी प्रैक्टिस ये है. और जैसे रॉन्डा बहन ने ये बोला है कि कल की प्रैक्टिस भी हमने पढ़नी है, तो कल की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि एक छोटा सा पत्थर हमने अपने पास रखना है, जिसकी जरूरत हमें कल पड़ेगी. तो हम लोगों को बेसिकली रॉन्डा बहन क्या सिखा रही है ना, कि हमने उठना भी ग्रेटिट्यूड से है और सोना भी ग्रेटिट्यूड से है. तभी हमारी लाइफ जो है वो मैजिकल ब्लिसफुल हो जाएगी, और हम लोग अपनी तरफ से अपने ड्रीम्स को अचीव करते हुए औरों का भी, नेचर का, बाकी पीपल का, उनका भी ध्यान रख सकेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग क्या करेंगे कल की प्रैक्टिस के लिए, एक छोटा सा पत्थर स्मूथ एजेस वाला हम लोग अपने पास रख लेंगे. छोटा होना चाहिए ताकि वो हमारी मुट्ठी में आ जाए, और उसकी वो मुट्ठी में भर के कल हमने ये प्रैक्टिस करनी है. वो वाली प्रैक्टिस भी हमारी लाइफ लॉन्ग ही रहेगी. ठीक है, ये करना है. आज आप लोग ढूंढ लेना पत्थर, तो कल हम लोग इस प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे. और इस तरह से हम लोग जो है आज की प्रैक्टिस को करते हुए कल की प्रैक्टिस के लिए पत्थर को रख के हम लोग ब्लिसफुली अच्छे से हम लोग आज का दिन का शुरुआत करेंगे ये प्रैक्टिस करते. अब ये सेशन खत्म होते ही आप लोग प्लीज लिख लेना. जैसे हम लोग तो जो पहले से कर रहे हैं वो तो हम लिख ही चुके हैं, तो आप लोग भी जो जिन्होंने नहीं लिखी है, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी हैव टू डू दिस. हाँ, सो या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी. एंड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क, आप पूछ सकते हैं. एंड या मैम, इफ यू वांट टू लाइक ऐड सम इनपुट्स टू इट. Priya, can I say something? यस यस प्लीज डू सुनैना. वैसे तो सब कुछ प्रिया ने बोल दिया है. मैं भी इस
टीचिंग्स का मतलब बहुत बड़ा, मुझे भी बहुत कुछ मिला है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ बहुत सिंप्लीफाई करके, कि जैसे सब सब कुछ ठीक है, टेक्निकलिटीज वगैरह सब ठीक है, जब हम बात करते हैं ना फीलिंग्स की, तो जहां आप दिल यूज करते हो वहां फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। तो आप कुछ भी लिखते हैं, अगर दिल से लिखते हैं ना, बिलीव मी, वो फीलिंग्स जनरेट होती हैं और ग्रैटिट्यूड में पावर आ जाती है। जैसे सन होता है ना, जैसे प्रिया तो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं जैसे अब कैलगरी में हूँ, तो मुझे सन इसलिए बहुत मैं मिस करती हूँ कि मेरे कपड़े सूख जाएं। बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे अब्रॉड कंट्रीज में रहते हैं ना, तो हमें वो आदत होती है कि धूप में कपड़े सुखाने के लिए जब आप शावर लेके बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है टॉवल कहाँ डालें। इंडिया में होता है ना कि हमारे बने होते हैं स्पेसेस, नहीं बने होते जहाँ हम टॉवल्स हैंग करते हैं कि सन में सूख जाएं। तो जब मैं इंडिया थी तो मैं सन के नीचे बैठ के ओके मुझे विटामिन डी मिल जाए, बट आज उसी सन की देखिए, मुझे ये होता है कि थोड़ा सन निकले तो मेरी ग्लास विंडो से कपड़े और टॉवल सूख जाए। तो मतलब हर चीज की, हर उसके हिसाब से वो बदल जाती है। तो किसी को कोई भी चीज आपके हिसाब से जो भी लगता है कि मुझे मदर अर्थ क्यों अच्छी लगती है, मैं चलती हूँ, या किसी के लिए ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है, पानी किसी के लिए, मतलब हर एक की यूटिलिटी, हर एक की यूजफुलनेस उसके हिसाब से वेरी कर जाती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे पास भी बहुत सी क्वेश्चंस आते हैं कि एफर्मेशंस कैसे लिखें या ब्लेसिंग्स कैसे लिखें। सॉरी, मेरे थोड़ा अनवेल हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आपका जैसा मन करता है ना, लाइक सिंपल सीधी भाषा में हिंदी में लिखते हुए कि मैं सन को इस, आई एम थैंकफुल टू सन, कि सन को देख के भी कि मेरे कपड़े सूख जाते हैं, थैंक यू सो मच, या मुझे विटामिन डी मिलता है, थैंक यू सो मच। तो आप उसको सिंप्लीफाई वे में भी करके लिख सकते हैं। इट जस्ट अबाउट हार्ट, आप दिल से जो भी करते हैं उसकी फीलिंग नेचुरली आ जाती है, और जहाँ फीलिंग्स आ जाती है उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपकी लैप में, आपकी गोद में, आपकी लाइफ में फिल हो जाते हैं। दिस इज या एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला सुनैना कि फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर की चीज फीलिंग्स है ना, वही बोला ना, फीलिंग्स ही फ्यूल है। जो चीज करते जाएंगे वो हमारे लिए आता जाएगा। आपने स्विच ऑन किया तब आपको पता चल जाएगा कि स्विच का क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है ना हमें टाइम के साथ साथ। हर किसी को जैसा अपने नजरिए से लगता है उसको उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। पूनम मैम, दीप्ति मैम है वो इनपुट्स ऐड करने के लिए, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। Priya, I could not see her. I don't think so. मैंने देखा था अभी, I could not see her only. अच्छा, ओके And Priya, ओके, you सो did tell थैंक about यू। the stone, na, finding the stone for tomorrow. यस मैम, यस मैम, बोला मैंने। या ठीक है जी, ठीक है जी. स्टिल मैम, इफ यू वांट टू ऐड लाइक प्लीज, इसमें मैजिक में प्लीज आप अभी अपने इनपुट्स ऐड कर दीजिए काउंट में Priya, you ब्लेसिंग्स spoke, में। you covered everything, and everything. You spoke very थैंक well, and everything was covered. Thank you so much, Priya, यू मैम। and thank you, Serena, for adding on. पूनम, can we use the same rock? Because उसमें मुझे ज्यादा Yes, वो लगता है। yes, Yes. वो तो आपका मैजिकल यस रॉक हो यस, गया है. ऑब्वियसली। ये नए जन्म Okay, ऑब्वियसली के मैम, लिए thank हाँ। है. सॉरी प्रिया, सॉरी, टेक. यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मैं thank इसको you. बोलना भूल गई शायद कि हमारे पास जो पुराना रॉक है, जो हम लोग पहले के प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे पास जो पुराना रॉक है हम उसी को यूज करेंगे। और एक और चीज माँ, एक बार ना ऐसा हुआ था कि किसी का क्वेरी आया था कि मेरे रॉक में क्रैक्स आ गए या टुकड़े आ गए तो मैं क्या करूं। हम लोग फिर मैम ऐसे बोलती ना, उसको हम लोग फिर नया रॉक ले लेंगे। अगर कोई ऐसा, अगर हमारा पुराना टूट गया है या उस तरह का हो गया है, तो हम लोग उसको रख के हम लोग नया ले लेंगे, बिकॉज न्यूनेस इज वेरी गुड, न्यूनेस शुड बी वेलकम। अगर वो, मैम कहती है ना, जब इतनी ज्यादा पावर आ जाती है ना तब वो क्रैक्स हो जाते हैं। तो जिनके पास, हमारे पास पुराने वाले रॉक्स हैं, विल कीप कंटिन्यूइंग डूइंग द प्रैक्टिस यूजिंग दैट रॉक। और जिनके पास नहीं है, हम लोग जो नए हैं वो हम लोग ढूंढ लेंगे। छोटे सी बजरी भी हो सकती है, या आपके गार्डन रॉक भी हो सकता है, छोटा सा हो, बस स्मूथ एजेस वाला हो। या थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. Thank you. Good morning once again. I'm Poonam, and we will be doing creative visualization, our second book.
अभी तक हम लोगों ने सबने, दिस बुक इज वेरी कैप्टिवेटिंग, और हम सीख रहे हैं बेसिकली कि हम अपने जो हमारे जो थॉट्स है ना, जो हमारे रनिंग कमेंट्री चलती है हमारे माइंड में, जो हमारी हमेशा सेल्फ टॉक चलती रहती है, जिसके लिए हम अवेयर भी नहीं होते हैं, कि हम उनको कैसे टर्न कर लें, ताकि हमारा जो इतने टाइम से हमारी परत जमी हुई है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ टॉक इज ऑलवेज यूजुअली व्हेन यू आर नॉट कॉन्शियस, लाइक कि वो डाउट वाली होती है, डर वाली होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो होती है, बिकॉज ये एक मतलब एक नेचर बन जाता है। जैसे बिकॉज वी आर डूइंग दिस बुक, so I realized yesterday, like I had gone out somewhere and मैं रात को कल आने में लेट हो गई थी, तो जैसे ही मेरी गाड़ी अपने घर में घुसी, मेरे को ना एक फ्लीटिंग सी, मतलब एक अजीब सी सेंसेशन आ रही थी कि I got very conscious that I'm late, and then I realized that it is stemmed from the time when I got married, because when we used to be late, like my parents-in-law never used to like it, so हम लोग ना बहुत वो कर आते थे, बहुत मन में बहाने मार के आते थे कि क्या बोलेंगे अपने पेरेंट्स-इन-लॉ को, and lately like my husband also never used to like to come late, so वो इतना deep rooted बैठ गया ना, कि जबकि the parents-in-law are not there, but वो इतना deep rooted बैठ गया है कि वो घर में घुसते ही वो पुरानी वाली फीलिंग याद आ जाती है। बट आई वॉज लाइक, बिकॉज वी आर सो लाइक, अब हम इतने अवेयर हो गए हैं अपने थॉट्स से, थैंक्स टू द बुक्स वी आर डूइंग, थैंक्स टू दीप्ति मैम्स टीचिंग, एंड थैंक्स टू एवरीवन शेयरिंग सो मच, दैट yesterday when I realized this कि मेरा घर में घुसते ही मतलब, and this happens only when I'm at, मतलब मैं लेट हो जाती हूँ, जिस दिन लेट मीन्स when I'm like रात हो जाती है तो, and I realized that how this is so true, we don't even realize कि हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या वो इसमें लिखा है ना, और हमारी जो कमेंट्री चलती रहती है, then मतलब that is why affirmations are so important. So because we are doing this book, I kept on telling myself that I'm always loved and appreciated, and I come home in happiness. Or the moment I started saying this in my mind, my feelings changed. So I am so grateful that because of all this we are getting aware कि हमारी feelings क्या, हमारे thoughts क्या चल रहे हैं। इसमें भी हमने कल पढ़ा था ना, our mental commentary influences and colors our feelings and perceptions about what's going on in our lives, and it is these thoughts form the ultimate form, and it is these thought forms that ultimately attract and create everything that happens to us. So ये it is so right कि हमारे को जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं ना, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि वो चल रहे हैं, और हमको और सिचुएशंस वो अट्रैक्ट करते हैं। सो देन आई रियलाइज दैट वो इतनी डीप रूटेड मेरी वो फियर था ना तब का, जबकि मेरे को पता भी नहीं था, मुझे सच्ची पूछे तो, कि मुझे ये फियर भी है। सो आई मस्ट हैव रियली attracted this ki, like after a time even my husband didn't like our coming late or our going out, or if I am alone my coming late. So this is when I realized that because of my fear I only attracted that situation. So, and affirmations are the best way. The more we tell ourselves, the more the positive statement we tell ourselves, वो चाहे उस मोमेंट ही होता है, चाहे उस मोमेंट में आप 2 बार ही बोल दीजिए, आई एम सो पावरफुल, आई एम सो पावरफुल, आई एम सो पावरफुल, आप बोलते रहिए, एक्चुअली योर सेल्स, योर बॉडी, योर कॉम्पोजिशन विल चेंज। आप सिर्फ यही बोल दीजिए कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उतने में हमारा इतना चेंज हो जाता है। So this book is so beautiful, the journey is so beautiful. So let's read this. हमने कल करा था कि मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं जो पहले भी चलती थी, जिसको हम लोग माइंडफुलनेस कहते हैं, और उससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज दैट इज जब हम कभी कहते हैं ना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम डीप ब्रीथ करें। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं और हम अपनी ऑब्जर्वेशन उस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लगाएंगे, सो जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन उस ब्रेथ में लगाते हैं, जब हम जो सांस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि मोमेंटरीली ही चाहे हमारा अवेयरनेस अभी के लिए आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पास्ट या फ्यूचर, है ना, बिकॉज आज रात को क्या बोलना है, या मैंने कल क्या बोल लिया, या मेरा कल कैसा था और अब कैसा आएगा।
पर जब हम अपना फोकस लगाते हैं अपनी ब्रीदिंग पर या किसी चीज पर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उस समय उस प्रेजेंट में आ जाते हैं. आई थिंक तानवी विल बी रीडिंग टुडे, राइट प्रिया? यस मैम तन्वी मैम, ये क्या थोड़ा सा और जूम हो सकता है हाँ बुक? अच्छा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा. थोड़ा सा अगर जूम हो जाए. इज दिस गुड? अच्छा, मैंने ना एक्चुअली या पार्टिसिपेंट. परफेक्ट परफेक्ट. हाँ हाँ, मस्त मस्त, हाँ बिल्कुल. थैंक यू मैम. एक मिनट जी. हाँ जी, Tanvi supposed to read ना. Yes, ma'am. Tanvi, from this is a very valuable experience. Thank you. So, this is a very valuable experience as it allows you to become consciously aware of the content of your thoughts. Many of these thoughts are like tape recordings of old patterns we have had all our lives. They are old programming we picked up long ago, which is still influencing what's happening to us today. For example, we might find that we habitually think self defeating thoughts such as, I'm not going to be able to do this, or this is never going to work out right. The practice of engaging in affirmations allows us to begin replacing some of our stale, worn out, or negative mind chatter with more positive ideas and concepts. It is a powerful technique, one which can in a short time transform many of our attitudes and expectations about life and thereby help to change what we create for ourselves. 1 minute Tanvi. So इसमें भी लिखा है कि जो हमारे थॉट्स है ना, वो एकदम जैसे एक रिकॉर्डिंग चलती है ना, वैसे ही चलते रहते हैं. मतलब थॉट्स का एंड ही नहीं है. और कितनी बार ऐसा होता है हमारे थॉट्स सिर्फ ओल्ड पैटर्न्स में वर्क करते हैं. ओल्ड पैटर्न मींस आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए पुराने, कुछ भी पास्ट में हुआ है, किसी का भी आपको सपोज इस पर्सन से आपका इससे रिलेशन ऐसा है, या कोई आपको एप्रिसिएशन नहीं मिली है, या यू गिव टू मच ऑफ योर time to anyone and then also you're not appreciated. But what happens is you keep on doing your work, but at the back of the mind that thoughts are the thoughts keep on coming कि okay, मैं कर तो रही हूँ पर ये होना तो कुछ नहीं है, मैं जा तो रही हूँ पर ये कुछ होएगा नहीं. So basically हमारा जो पैटर्न बना हुआ होता है ना, हमारे ना सबके पैटर्न्स बने होते हैं. जैसे एरियाज हमारे होते हैं ना, हेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क, मनी. तो हमारे कई 1-2 एरियाज में हमेशा हमारे चैलेंजेस होते हैं. तो हमारा ना पैटर्न बन जाता है उन एरियाज को लेकर. सपोज आपका एक घर में कोई भी पर्सन है, या कोई भी घर में ना भी होकर कोई रिलेशनशिप है, उससे आपकी मतलब कभी भी पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं था. आप जब भी उनके कांटेक्ट में जाएंगे या उनके लिए कुछ करेंगे, आपका एक पैटर्न बन जाएगा. यू विल नॉट से कि अब ऐसा नहीं है, वो बन जाएगा. एक अपने आप ऑटोमेटिकली होता है. जैसे मैंने बोला ना, जैसे मैं कल घर में घुसी तो मेरा एक ऑटोमेटिकली माय फीलिंग्स केम डाउन. जितना मैं एंथुसियास्टिक थी, द मोमेंट द गेट ओपन एंड इट केम डाउन. सो जस्ट इमेजिन कि हम कितना, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे कितने पैटर्न्स होते हैं. और हमको क्या होता है कि हमें एक आदत होती है, वो सेल्फ जो हमारी टॉक होती है ना, हमेशा नेगेटिवली ज्यादा होती है, मतलब लोअर बिलो द लाइन ज्यादा होती है. सो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं अप्रिशिएटेड नहीं होंगी, ये कोई इसका कुछ होगा नहीं, ये ऐसे कैसे होगा, यूजुअली ये होता है. सो जब हम एफर्मेशंस करते हैं, क्या होता है कि जो हमारा ये जो हम जितना सोचते हैं ना, जो हमारे थॉट्स आते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट हो जाते हैं. अब जो हमारा डिपॉजिट हो गया है और वही वो अट्रैक्ट करेगा, तभी हम और सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें और वो चीजें ऐसे देखने को मिले. सो जब हम एफर्मेशंस करते हैं, क्या होता है, हम अपना जो पैटर्न है, जो नेगेटिव
पैटर्न है उसको चेंज करते हैं। सो जब मैं घर में, अब मेरे को जैसे मालूम पड़ गया, मैं जब अपने घर में घुसने लगूंगी या पहले से ही जब मैं कार में आ रही हूँ मैं बोलूंगी आई कम होम इन हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, आई एम सो लव्ड एंड अप्रिशिएटेड। जब मैं बार बार ये बोलूंगी तो मेरी फीलिंग जब मैं घर में घुसूंगी तो डाउन नहीं जाएगी। और जब वो डाउन नहीं जाएगी, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई कुछ बोलता है कोई कुछ, बट ये पुराना एक हैबिट बन गई है ना, मेरी पुरानी 30-35 साल की हैबिट बन गई है। बट जब जब अब मैं एफर्मेशंस करूंगी तो देन मेरा वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, है ना। जब मैंने डिपॉजिट कर दिया कि आई ऑलवेज कम होम इन हैप्पीनेस एंड लाफ्टर, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटेड, तो क्या होगा, मेरे बार बार बोलने से मेरे सबकॉन्शियस माइंड से जो मेरी पुरानी जो नेगेटिव थॉट्स थे वो रिप्लेस हो जाएंगे इससे। और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जब मैं घुसूंगी घर में तो अपने आप ही मेरी फीलिंग्स हैप्पी की हो जाएगी, मुझे सोचने की, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, एफर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका मेडिटेशन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमको प्रेजेंट में ले आता है और हमको स्ट्रॉन्गर बनाता है। सो इसमें लिखा ना, इट इज अ पावरफुल टेक्निक वन विच कैन इन अ शॉर्ट टाइम ट्रांसफॉर्म many of our attitudes and expectations about life and thereby help to change what we create for ourselves। तो हम बिकॉज हम तो क्रिएटर ही हैं, we all are creators। अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, that is the thing, कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो एफर्मेशन से हम अपनी बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, बेटर चीजें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हाँ जी तन्वी प्लीज पढ़िए, एफर्मेशंस कैन बी। Affirmations can be done silently, spoken aloud, written down, or even sung or chanted. Even 10 minutes a day of repeating effective affirmation can counterbalance years of old mental habits. If you become aware that you are repeating habitual negative thought patterns or attitudes, try saying an affirmation to yourself a few times right then and there. For example, if you find yourself thinking, "Oh, what's the use? I will never get what I want," you might say to yourself, "I have the ability to create what I want in my life," or "I deserve to be happy and fulfilled." An affirmation can be any positive statement. It can be very general or very specific. There are infinite numbers of possible affirmations. Here are a few just to give you some ideas. Yeah, 1 minute तन्वी। So इसमें बताया है कि जो एफर्मेशंस हैं उसको आप मन में बोल लीजिए। कभी कभी मन में भी, जैसे मुझे ना सब लोग जोर से बोलते हैं, मुझे कभी कभी बहुत चीजें लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप ब्रह्म मुहूर्त में मुझे बहुत चीजें साइलेंटली करने का मन करता है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू अब्सॉर्ब इट इन माय माय सबकॉन्शियस माइंड में। आंखें बंद कर साइलेंटली बोलती हूँ कभी, और फिर थोड़े टाइम के बाद मेरा जोर से बोलने का मन करता है। सो एफर्मेशन आप लिख सकते हैं, जितना आप लिखोगे, और बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग योर थॉट्स आर इन दैट। जैसे दीप्ति मैम ने बोला है कि हर एक एफर्मेशन 10 टाइम लिखिए। जैसे कल मोहित जी ने भी कल शेयर करा था ग्रुप में कि कैसे वो कितनी एफर्मेशंस कितनी बार रिपीट करते हैं। आप जोर से बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप साइलेंटली उसको मन में बोल सकते हैं, चांट कर सकते हैं। आप 10 मिनट रोज एफर्मेशंस करें, बोलेंगे या लिखेंगे। सो बेस्ट होता है लिखना। लिखने से क्या होता है, लिखते लिखते आप जोर से भी बोल लीजिए। आप देखना कि कितनी मेंटल हैबिट्स चेंज होती है, कितनी चीजें, मतलब कोई भी किसी चीज को भी ले लीजिए, इतनी आई एम गेटिंग। आप सिर्फ ये भी बोलोगे ना कि आई एम प्रॉस्परिंग डे एंड नाइट और आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, जो भी लिख लीजिए, जो भी आपको चाहिए, इट इज लाइक अ श्योर शॉर्ट थिंग। आपके पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। सो जैसे हम हमेशा सोचते ना कि ओ मैं कोई फायदा तो है नहीं, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे कभी भी नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। उसकी जगह बोलोगे ना कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई हैव द एबिलिटी टू क्रिएट व्हाट आई वांट इन माई लाइफ, I deserve to be happy and fulfilled। So affirmation हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं और हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। आप कभी भी नहीं बोलोगे कि आई विल बी गेटिंग मनी, है ना, ऐसे नहीं होगा। आई एम प्रॉस्परिंग डे बाय डे, आई एम गेटिंग लोड्स ऑफ मनी, ऐसे कर कर बोलोगे। देर ऑलवेज इन द प्रेजेंट। उसमें कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता है। कभी भी नहीं होगा कि
every day I should not get sick. ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे every day I'm healthy, ऐसे करके बोलेंगे. So Tanvi, though I know 1 मिनट रह गया है, but इन सब affirmations को आज आप पढ़ लीजिए, ताकि we all stay with these affirmations. These affirmations are so beautiful, ताकि हम कल जब हम करेंगे, जब दीप्ति मैम कर लेंगी, कल हम फिर से affirmations पढ़ लेंगे. But we can all stay with this. We can end our session by this. So Tanvi, आराम आराम से पढ़ लीजिए ये वाली affirmations, and we can all close our eyes when Tanvi is reading it, so that we can absorb it. Yes, ma'am. Every day, in every way, I am getting better and better. Everything I need is coming to me easily and effortlessly. My life is blossoming in total perfection. I have everything I need to enjoy here and now. I am the master of my life. Everything I need is already within me. Perfect wisdom is in my heart. I am whole and complete in myself. I love and appreciate myself just as I am. I accept all my feelings as part of me. I love to love and be loved. The more I love myself, the more love I have given to others. I now give and receive love freely. I am now attracting loving, satisfying relationships into my life. My relationship with is growing happier and more fulfilling every day. I now have a satisfying, well-paying job. I love doing my work and I'm richly rewarded creatively and financially. I am an open channel of creative energy. I am dynamically self-expressive. I enjoy relaxing and having fun. I communicate clearly and effectively. I now have enough time, energy, wisdom, and money to accomplish all my desires. I am always in the right place at the right time, successfully engaged in the right activity. It's okay for me to have everything I want. This is an abundant universe, and there is plenty for all of us. Abundance is my natural state of being. Every day I am growing more financially prosperous. The more I have, the more I have to give. The more I give, the more I receive, and the happier I feel. It is okay for me to have fun and enjoy myself, and I do. I am relaxed and centered. I have plenty of time for everything. I am now enjoying everything I do. I feel happy just being alive. I am healthy and beautiful. I am open to receiving all the blessings of this abundant universe. Everything is coming to me
easily and effortlessly. I have a wonderful job with a wonderful pay. I do a wonderful service in a wonderful way. The light within me is creating miracles in my life here and now. All things are now working together for good in my life. I'm now attuned to my higher purpose in life. I now recognize, accept, and follow the divine plan of my life as it is revealed to me step by step. I give thanks now for my life of health, happiness, and self expression. Thank you, Tanvi, for reading so well. So, really, Tanvi, you read really well. बहुत मतलब. Really beautifully, you must say, really nice, very nice. Thank you. Thank you. And these are such powerful affirmations. आप इनमें से आपको सब लोग रेजोनेट करोगे अपनी अपनी एफर्मेशन से. आप लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे ये 4-5 अच्छी लगी है, मुझे ये 3-4 अच्छी लगी है, एंड आप उसको बार बार अपने माइंड में कहीं लिख लीजिए. बार बार, यू नो, द बेस्ट थिंग इज कि जब भी मौका लगता है उसको एक बार माइंड में रिहर्स बोल दो, या जोर से बोल दो, या चलते फिरते बोल दो. एंड देन वी आर ऑल हियर टू क्रिएट द लाइफ वी वांट. एंड इतनी ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है बिकॉज हम बार बार जब आप वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं, द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव, द हैप्पियर आई फील. मतलब इतनी एवरीथिंग कम्स टू मी विद ईज एंड जॉय. एंड सो इट इज सो ब्यूटिफुली, एफर्मेशन इतनी अच्छी हैं. सो वन ऑफ अस, इवन आई कैन पुट इट इन द ग्रुप, सारे एफर्मेशंस डाल देंगे. एंड उसके बाद जिसको जो चूज करना है, एंड सबके पास तो पीडीएफ है ही, so they can all do that also. And let's really become conscious कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या हमारी सेल्फ टॉक है, so that we keep on creating. कितनी बार क्या होता है कि हमारी ही बिलीफ हमको लिमिट करती है. हमने डिजायर लिस्ट बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम डे 13 कर लेते हैं, हम सब कुछ विजुलाइज कर लेते हैं, पर जो हमारी दिन भर में जो हमारी सेल्फ टॉक चलती है, जो लिमिटिंग बिलीफ चलती है, वो हमको अपनी ड्रीम से दूर कर देती हैं. So every day we are getting better and better, and every day we are learning such beautiful things which are changing our life. So thank you everyone for listening to me, Poonam and Priya. And there are hands raised. Sunaina's hand is raised and Priya Nehra's. Thank you, ma'am. And we can all, Hanji Sunaina boliye please. सपना का भी हैंड रेज था. Hanji. थैंक यू हाँ. Good सबसे morning, पहले तो ma'am. तन्वी को थैंक यू. हाँ जी, ना एक नथिंग, सपना का हैंड बहुत देर पहले से रेज था. एक मिनट. हाँ जी, सपना. Ma'am, I was saying कि जो affirmations अभी रीड आउट किए हैं ना, उनको बस ग्रुप में डाल दीजिएगा. I was डाल saying. देंगे सपना. हाँ, ये ना अयान ने बना रखा है एक्चुअली. अयान हैज ऑलरेडी मेड दैट पीडीएफ ऑफ पीडीएफ एंड उसका ना बना लिया उसने क्रिएटिव विजुअलाइज. ये सारे के सारे एफर्मेशंस अभी आ जाएंगे ग्रुप में थोड़ी देर चलो, में. वेरी नाइस. ठीक है? थैंक यू, Right, थैंक यू, Thank थैंक यू you. अयान. हाँ Thank जी, you, हाँ जी, अयान. And सुनैना. ओके, एक्चुअली मैं तन्वी से मेरी फोन पे काफी बार बात हुई है. आप वही तन्वी हो ना? पर मैंने आज तक कभी इसको देखा नहीं, तो इसलिए मुझे श्योर नहीं था. बट शी इज सो स्वीट. आई मीन, थैंक यू सो मच. एंड मैं शेयरिंग भी बताती हूँ. मेरे को बाय चांस मैंने ने पानी का गिलास दिया, तो मैंने कहा क्यों ना डबल बेनिफिट लिया जाए. मैंने पानी का गिलास भर के रख दिया और सारी एफर्मेशंस इसमें अब आ चुकी हैं, और अब मैं इसको पूरा पी जाऊंगी. मेरी शेयरिंग ये थी कि मैं ना थोड़ा सा ऐसे मेरा है कि मैं नई नई चीजें करती रहती. तो मैंने आजकल एक नई चीज शुरू की है जो मैं शेयर करना चाह रही थी, जो कि एक फन भी है. मैं एवरीडे कोई एक सुपरलेटिव बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं ना, जैसे लाइक सुपर, ऑसम, मैग्निफिसेंट, इस तरह का एक पिक कर लेती हूँ एक वर्ड. सपोज मैंने कल पिक किया था सुपर, तो मैंने सुपर से जितने सेंटेंसेस बने, ओके, आई एम सुपर हेल्दी, सुपर वेल्दी, सुपर हार्मोनियस, सुपर जॉयफुल, सुपर अलर्ट, सुपर माइंडफुल, सुपर प्रॉस्परस, मतलब जितने आप बना सकते हैं. तो उससे क्या होता है, फन गेम होता है कि मैं बहुत इजी से एक वो हो जाता है. एंड साथ साथ आपका इतना ग्रेटिट्यूड हो जाता है. एंड जैसे कि खाना बना रही हो, आई एम सुपर कुक, माई फूड इज सुपर टेस्टी,
my kids are super happy. So it's just like super word आपने use करना है and just try it, like fun का fun and English भी better, और gratitude तो जो better होगा ही वो होगा ही. तो एक मेरी Sunena, ये we'll wait for this word. Sunena, I would like that if you could share every day a new word in the group. We'll wait for your oh message, yeah, really. sure, एंड sure, I would. एक्चुअली इतना फन एंड दिव्या मैं बोलती ना कि यूनिवर्स है, इसको गेम बनाइए, फन बनाइए, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यू आर डूइंग. और आपने शेयर कर सुने ना, एक्चुअली वी शुड ऑल टेक दिस. एंड वो इसी, आप सही कह रहे हो, इसी बहाने ना हम लोग और एंड और ढूंढेंगे, जैसे हम ग्रेटिट्यूड ढूंढते ना, हम और Yeah, ढूंढेंगे. yeah, या वेरी yeah. ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल सुने और ना. एक और चीज मैंने किया कि जैसे हम लोग कहते हैं ना हर चीज को ग्रैटिट्यूड देना, कई बार सीरियसली डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना लिया है, ग्रैटिट्यूड सोल जिसका हेडिंग है. मैं शेयर भी कर दूंगी, मैं बता, जैसे मैं बिलीव करती हूँ मैं ग्रेटफुल सोल हूँ, तो ग्रेटफुल सोल. तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैंने ये लिख दी, मैंने टाइटल्स बना दी. ओके, मेरी ग्रैटिट्यूड स्लीप थी, मेरे ग्रैटिट्यूड स्टेप थे, फिर मेरा ग्रैटिट्यूड डिटॉक्स मतलब यूरिन एंड एवरीथिंग, फिर मैंने ग्रैटिट्यूड ब्रश किया, फिर मैंने ग्रैटिट्यूड शावर लिया, फिर मैंने ग्रैटिट्यूड कपड़े डाले, फिर मैंने ग्रैटिट्यूड मिरर देखा, फिर मैंने ग्रैटिट्यूड पानी पिया, ग्रैटिट्यूड टी पी, ग्रैटिट्यूड डिश क्लीनिंग की, ग्रैटिट्यूड खाना बनाया, मतलब इस तरह से टिल माय, लाइक जब मैं सोती हूँ तब तक वो इतना, लाइक ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग से लेके टिल नाइट तक 25 या 30 वो बन जाती हैं. सो इवन टॉयलेट पेपर भी, सॉरी मैं यूज करती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मेरा एक ग्रेटिट्यूड टॉयलेट पेपर है, बिकॉज वो टॉयलेट पेपर इज ऐसा नहीं कि हर कोई भी यूज कर पाता, और वो भी 5 एलिमेंट से बनता है हर पेपर. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, थोड़ा लिटरल हो गया, बट अगर आप ऐसे भी ट्राई करना चाहते हैं ना कि लिखने का टाइम नहीं है या कुछ ज्यादा हो जाने का टाइम नहीं, जस्ट ट्राई इट. सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड, नींद आई थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पैर रखा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड अर्थ है थैंक यू, मतलब इस तरह से यू कैन मेक इट अ लिटिल सिंपल, बट उसका इफेक्ट उतना ही होता है, बिलीव मी. और जब आप मजे लेके करते हो तो फिर से वही बात आ जाती है, मजा जब आने लगता है तो अच्छा लगने लग जाता है ना, वो चीज आपके अंदर नेचुरल धीरे धीरे अपने आप आ जाती है. तो कप उठाया तो थैंक यू फॉर द ग्रेटिट्यूड कप. सो इट जस्ट लाइक यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. सो दैट्स इट. ब्यूटीफुल सुने ना. आप तो अब एक बुक लिख लीजिए, फन वेज टू डू ग्रेटिट्यूड. Actually, you gave such good Really ways and share wonderful. सच्ची आप बहुत अच्छी शेयरिंग करते हैं सुनैना, एंड ये ना बहुत मैं बच्चों के easy ग्रुप में वाली. करना चाह रही थी कि क्योंकि बच्चों के लिए चीजें हाँ, बहुत, बच्चों के लिए हर चीज पे वो ग्रेटिट्यूड हो जाएगी ना, ग्रेटिट्यूड प्लीज पेंसिल, करिए ना. ग्रेटिट्यूड इरेजर, या बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा. एंड Sunena ma'am, it is a new way basically. Now we can go with these words. It is amazing, really, really awesome. वेरी नाइस, वेरी Thank वेरी नाइस. अब आप लोग Yeah, भी सुनैना, beautiful. एक्सप्लोर कीजिए नए नए वर्ड्स, जैसे सुनैना सुपर बुक है. लिखेगी अब इस पे. हाँ मैं लिख रही हूँ, मैं बहुत जल्दी आऊंगी आपके साथ बुक यस, आई एम लेके. श्योर. ये तो मेरी स्पीच हो गई. And yeah. So now, थैंक यू. like I have a wonderful sharing today. Thank you, Sunena, so much. It's really the best way to start our day and to like incorporate gratitude. So I have this wonderful sharing, and I actually कल भी था ये, मैं it just slipped off my mind. So this is a sharing of a beautiful person in our group. She cannot say it on her own, तो मैं उनकी तरफ से कह रही हूँ. तो उनका मतलब her life was in total turbulence for the last 20 years. तो she was into a very difficult relationship, being a mom. She's a single mom now. और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर उन्होंने, हम लोग समझ सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द मैरिज व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस विद यू, तो किस तरह से हमारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो जाती है. हमारे पास कोई इस तरह का सिचुएशन फेस करने का जो कैपेबिलिटी है ना, बहुत कम लोगों के पास होता है. सो कुडोज टू हर फॉर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स. कल मतलब परसों उसने, शी वॉज ड्वेलिंग इनटू सो मच ये ना कि भाई दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग, दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग, बट स्टिल शी वॉज ऑब्जर्विंग द परसिवियरेंस. तो उसने इतने अच्छे तरीके से ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में उतारा कि उसके सारे के सारे जो भी उसके हस्बैंड ने, जो उसके हस्बैंड है उन्होंने एफआईआर तक करवा दिया था. उसके जो पासपोर्ट्स हैं वो भी जब्त हो गए थे कि वो नहीं बाहर जा सकती. इस तरह की सिचुएशन होगी, नो एलिमोनी नथिंग. तो इस तरह का सिचुएशन से शी फॉट द केस एंड शी वन इट.
So by doing these gratitude practices, she won this. And I really want to underline this कि हम आपस में हम लोग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ कि जो ऐसी परिस्थिति से डील करते हैं, जो कि गिव अप कर देते हैं, एंड हम लोग उनको उस पर्टिकुलर फिगर को आई रियली वांट टू सल्यूट कि किस तरह से उन्होंने इतने हार्डशिप्स को फाइट करते हुए भी उन्होंने आज अपने लिए एक अच्छा, अपने बेटे के लिए और अपने लिए, अपनी जो मेटर्नल जो उसकी फैमिली है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा, उसने हम सबके आगे ना एक बड़ियों से एक उन्होंने मुकाम हासिल जो किया है ना, वो सबके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन चुकी है। एंड वो अपने कोर्ट में तो जीत ही चुकी हैं, हाई कोर्ट में, और उसके बाद वो हायर कोर्ट्स में और भी जाएंगी, सो दैट इट ब्रिंग्स लाइक वो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे एम्पावर्ड हो सके। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये सारी की सारी जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस हैं, वाटर टेक्निक, राइटिंग टू द यूनिवर्स, स्क्रिप्टिंग, ये सब कुछ करा है। अपने कोर्ट में हियरिंग में जाने से पहले वो मैग्निफिसेंट आउटकम करती थी, काउंट माई ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक तो रोज करती ही थी। तो इस तरह से उन्होंने 108 टाइम्स वो उन्होंने लिखे हैं। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत किसी और चीज में नहीं, अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसी एनर्जी में आपको वाइब्रेट करना पड़ेगा, तब वो चीज हमारे पास आती है। और इसमें कोई मतलब हम उसने ये नहीं सोचा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हार्डशिप्स तो आपसे सोचो, ऐसे इंसान के पास कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी तरह की बातें उसको सुननी पड़ती हैं। मतलब आप ये देखिए, उसके पूरी फैमिली के ऊपर केस हो गया था, है ना। लेकिन हमारे हमारे पास क्या है, हमारे इंडिया में तो आजकल जो ये लॉज है ना, तो लेडीज के लिए थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसकी सारी फैमिली के ऊपर केस हो जाना, लेकिन शी रिवर्स्ड द होल कंडीशन, द होल सिचुएशन हैड बीन रिवर्स्ड बाय देम, एंड कुडोज टू हर। ये सब इसीलिए हो पाया है कि क्यों उन्होंने अपना जो परसिवरेंस उन्होंने मेंटेन किया है वो करती रही, वो शी डिड नॉट गिव अप, उनको ये एनर्जी मिलती रही। और वो एनर्जी वो खुद बताती हैं कि मुझे ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी मिली है, इट हैज मेड माय लाइफ सो ब्यूटीफुल। दीप्ति मैम के गाइडेंस में वो आई, और उन्होंने, दीप्ति मैम ने जैसे बताया वैसे उन्होंने किया, और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने केस को आज अपने जीत पाई हैं। और लेडीज को भी जो हमारे ग्रुप में हैं या बाहर भी हैं, जो भी हमें यूट्यूब में सुन रहे होंगे, तो हम लोग अपनी लाइफ में काम पीस लाने के लिए हम अगर इस रास्ते को चुनते हैं ना, हमारे और भी रास्ते खुलते जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर, एंड एट द सेम टाइम और भी जो लोग हैं मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, प्लीज डू नॉट गिव अप। अपनी प्रैक्टिसेस हम लोग करते रहें, आएगा जरूर आएगा जो भी हम चाहते हैं। यही नहीं कि कोई केस की बात हो, हम लोगों को जो भी चीज चाहिए, जिस भी चीज की तमन्ना है आपको, जो भी आपका ड्रीम एंड डिजायर है, जरूर फुलफिल होगा वो। जस्ट हम लोगों को पेशेंस रखना है। नहीं हो रहा है तो हम लोगों को ये बात याद रखना है कि रोंडा बर्न क्या कहती है, कम ग्रेटिट्यूड किया तो कम होगा, ज्यादा किया तो ज्यादा हो गया। हम लोगों ने ना आलस नहीं फील करना है कि यार ये करना है, वो करना है, ये टास्क है। डू नॉट टेक इट एज अ टास्क। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि अगर आपको टास्क लगता हो, बहुत टफ लगता हो ना, कीप योर ड्रीम लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, देन थिंक दैट व्हाट यू वांट इन लाइफ। ड्रीम्स को पाना है तो ये वाला रास्ता तो हम लोगों को चुनना है, और खुशी से चुनना है, फीलिंग्स के साथ, क्योंकि हम लोगों को पता चलेगा ना कि वो फीलिंग्स में आने से एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको दे। क्या क्या करा था, बिकॉज आई थिंक एवरीवन वुड आल्सो वांट टू नो उन्होंने क्या क्या ग्रेटिट्यूड करा था। आपको जब भी मौका लगे उनसे बात करने का, पूछ मैं लीजिए, ग्रुप ग्रुप में डाल मैं दीजिए। ग्रुप में लिख दूंगी। हाँ, मैं मेनली तो यही किया था उन्होंने, ये काउंट माई ब्लेसिंग्स जो हम लोग आज हमने जो चैप्टर पढ़ा, जो हम कल पढ़ेंगे मैजिक रॉक, वो भी वो करते अभी तक भी कर रही है ऑब्वियसली। और उसके बाद वो जो जो चीजें हैं ना, जैसे मैजिक इंग्रेडिएंट उन्होंने करा, हील योर रिलेशनशिप का जो प्रैक्टिस है। अच्छा, हील योर रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उस बंदे के साथ वापस से मिलने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट कैन बी, इट इज द थिंग कि यूनिवर्स हैज गॉट दैट पावर टू शो यू द राइट पाथ। जो भी आपके लिए सही होगा ना, वही होगा आपके साथ। इफ दिस इज द थिंग, इफ द यूनिवर्स एज द थिंग कि भाई तुम यू यू वांट टू हैव अ पार्टेड लाइफ फ्रॉम दैट पर्सन, तो आपका लाइफ पार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये होगा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में जरूरी होगा वो पर्सन, तो आपके पास वो आ जाएगा। तो इट ऑल हैपेंस इन योर फेवर। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव टू कीप गोइंग विद दिस प्रैक्टिसेस। हैट्स ऑफ टू हर, रियली हैट्स ऑफ टू हर। And I'm sure that I'll be writing this about this particular thing in the group also, share करूंगी। बहुत सारे लोगों को इससे एनर्जी मिलेगी।
Yeah, so thank you so much. Thank you and congratulations to that Yeah, person. thank you And so much. deepest thank you to दीप्ति मैम, जिन्होंने ये इस तरह की जर्नी हमारी शुरू करवाई. सीरियसली, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि किस तरह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है और कितनी बड़ी नियामत है वो हमारे लिए ना, रियली. सो या, thank you, thank you, thank you Thank you, everyone. Tanvi and Anu, for reading so well. And Tanvi's hand is raised. Yes, Tanvi, आप बताइए. I just wanted to ask something. At times, the feelings are very important, as everybody said, and but at times feelings नहीं आती है for affirmations also, या फिर count my blessings also. मतलब because the negative zone is probably overpowering the positive zone. So आप अपना हाथ अपने हार्ट पे रखिए, और जब बेसिकली आप ऐसे करिए, जब तक फीलिंग नहीं आती ना तब तक आप करते तो रहिए एटलीस्ट. अपना आंख बंद करके आप, मतलब आप सपोज करो कोई भी एक आई एम हैप्पी ले लो, चलो ठीक है, आई एम हैप्पी, आंखें बंद कर लीजिए, अपना हाथ अपने हार्ट पे रख लीजिए, और फिर धीरे धीरे आपको फीलिंग्स आ जाएंगी. तानवी, पहले जब मैं भी मिरर में प्रैक्टिस करती थी, मैं सिर्फ मैकेनिकल करती थी, मुझे नहीं आती थी, पर करते करते, पर मैं करती जरूर थी असाइनमेंट में, पर करते करते मुझे पता ही नहीं चला एक दिन वो कब मेरे को फीलिंग्स आने लग गई और मैं कब अपने लिए इतनी ग्रेटफुल हो गई. सो आप करते रहिए, ये मत सोचिए कि मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही है, आपकी जरूर कहीं ना कहीं फीलिंग्स चेंज हो रही है, और ये बार बार बोलिए आप, आई एम सो हैप्पी, आई कैन फील इट, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, बार बार बोलते रहिए. क्या होगा, आपका वो जो नेगेटिव आप कह रहे हो, जो जोन में रहते हो, वो आपका धीरे धीरे आप ग्रेटिट्यूड से, थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी, करते करते आप ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा स्टेप करके ऊपर चढ़ते रहेंगे. Thank you, ma'am. पूनम मैम, हाँ जी ज्योति. हम लोग डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं ना बिफोर राइटिंग, अगर नेगेटिव जोन में है तो. हाँ जी, बहुत एंड देन डीप हार्ट पे ब्रीदिंग हाथ करते हैं तो यस. आप बेसिकली, तानवी क्या एकदम ज्योति सही कह रही है, जब आप डीप ब्रीदिंग कर कर लिखते हैं, आपका जो अंदर का कामनेस आ जाती है, और तब उस इवन, थैंक यू ज्योति सो मच, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो और जब आप एफर्मेशंस बोलेंगे तो आपकी बॉडी एक न्यूट्रल स्टेट में आ जाती है, वो अब अंदर ऐसे ऐसे नहीं रहता, मतलब अंदर अनस्टेबल नहीं होती. फिर डीप ब्रीदिंग करिए और फिर अपनी एफर्मेशंस बोलिए या काउंट माय ब्लेसिंग्स लिखिए. एंड डीप ब्रीदिंग अगर आप 2-3 मिनट भी करोगे, 1-2 मिनट भी करोगे तो भी बहुत है, 5 ब्रेथ भी बहुत है. ये बहुत अच्छा टेक्निक है, आप इसको करिए, एक्चुअली बहुत फर्क पड़ेगा. Thank you everyone. कल हमने एक पढ़ा था, आई एम अ डेलिब्रेट क्रिएटर, सो आप ये एफर्मेशन भी लिख सकते हैं. आई एम अ क्रिएटर But I ऑफ, feel, I'm ma'am, deliberate Poonam, ma'am, I creator. feel, you know, it is very, sometimes you have to be just mechanical and हाँ, gradually it अपने happens. आप आ जाएगा. Because this happened with me, yeah, this happened Absolutely. with me. Just be mechanical So deliberately initially. you have to say, रौनक ने कल ही बोला था ना कि हाँ. हमारा मन नहीं करेगा, but deliberately you have to do that, Fake and it that will become till a you make habit it. then. हाँ, fake Deliberately it till करना you make पड़ेगा. it. हाँ, है ना, और करते रहो बस तुम, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब में वो आ जाएगी अपने आप. जब कभी कभी जब भी मौका मिलता है, जब डीप ब्रीथ करो एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ, फॉर यू बीइंग अलाइव, तो देखना धीरे धीरे ग्रेटफुल फॉर द एयर, कुछ भी करते रहोगे, एक चीज ही पकड़ोगे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा. Thank you everyone. Thank you so much everyone for listening to me and Priya and being there for the session. We shall be meeting Deepti ma'am tomorrow. I think Deepti ma'am is not there in the session today. So thank you everyone for giving your precious time. We have really Thanks to you. time. Thanks to Have the you and most Priya. wonderful, most beautiful day today. May today be the best day of your Thank life. you. Thank you, Thank Poonam. you, Thank dear. you, Thanks a Priya. lot. Thanks a lot. Thank you, Sunena.